آپ کو بتائیں کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت رجحان 100 انڈیکس میں 395 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 70,900 کی سطح عبور کر گیا، جبکہ مارکیٹ میں تمام سیکٹرز میں سرمایہ کاروں کی دلچسپی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ایاز رانا سے۔ جی ایاز، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اگر ہم بات کریں آج کاروباری ہفتے کا دوسرا روز، آج صبح کا آغاز جو ہے مارکیٹ نے اپنے ریکارڈ بریکنگ کے ساتھ ہی شروع کیا، اور مارکیٹ میں ہم نے دیکھا کہ 71,000 کی سطح بھی جو ہے وہ مارکیٹ عبور کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ مارکیٹ کے اندر جو خبریں سب سے زیادہ سرگرم ہیں اس کے اندر ہے کہ جو سعودی وفد اس وقت آیا ہے پاکستان میں، جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک سب سے زیادہ اس کے اوپر جو ہے نظریں لگی ہیں سرمایہ کاروں کی، کیونکہ حال ہی میں جو ہے وزیر اعظم جو شہباز شریف ہیں جب وہ سعودیہ گیا، اس کے فوری بعد ہی اتنا بڑا وفد یہاں پہ آنا جو ہے وہ ایک انویسٹمنٹ کے لحاظ سے جو ہے وہ خوشائن سمجھا جا رہا ہے، اور مارکیٹ میں آج صبح سے ہی اسی کو لے کے جو ہے وہ تیزی دیکھی گئی، اور مارکیٹ نے جو ہے اپنے 71,000 کے بینچ مارک کو تاریخ میں پہلی بار جو ہے اس کو بھی عبور کیا۔ اور مزید کیا ایسی خبریں اس کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ سابق ڈائریکٹر PSX موجود ہیں امین یوسف، ان سے جانتے ہیں۔ امین بھائی، کیا ایسی خبریں یہی ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 71,000 بھی جو ہے وہ مینٹین نہیں ہو رہا؟ آج مارکیٹ کیا کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں، مارکیٹ میں بائنگ بھی ہے اور پروفٹ ٹیکنگ بھی ساتھ میں تھوڑی سی نظر آ رہی ہے، لیکن دیکھیں اوور آل جو ٹرینڈ ہے نا وہ بلش ہی ہے، کیونکہ چیزیں بتا رہی ہیں، جیسے آپ دیکھیں نا آپ کی کرنسی میں بھی آپ کے پاس اگر ریزروز بڑھ جائیں گے تو آپ کے کافی حد تک مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے، پلس اس کا سارا کریڈٹ SIFC کو جاتا ہے۔ اگر آپ کچھ بھی کہہ لیں SIFC اگر کریڈٹ نہیں ہوتا تو یہ ساری چیزیں میٹیریلائز نہیں ہوتی، کیونکہ ون ونڈو آپریشن جو آپ نے دیا ہوا ہے، اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا سعودی کے اگر وفد آیا اس میں کافی لوگ ہیں، ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے، مائننگ میں ہے، انرجی ہے، تو آپ یہ دیکھیں ڈائیورسفائڈ ہے، وہ خاص طور پر منسٹرز بھی آئے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس دفعہ میٹیریلائز ساری چیزیں ہو جائیں گی، اور پلس اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس قطری وفد بھی آ جائے، اس کے بعد UAE سے بھی جو باتیں چل رہی ہیں، تو آپ کے پاس دیکھیں گے کہ بہت سارا جو ہے نا انفلوز آئیں گے۔ ہم لون کی طرف جاتے ہیں، ہمیں لون کی طرف جانا نہیں پڑے گا، ابھی IMF کا ہم پروگرام تو اس دفعہ لے لیں گے، مجھے لگ رہا ہے کہ کیونکہ جیسے فائنانس منسٹر کی بھی بات ہے کہ وہ ایک ڈائریکشن انہوں نے دے دی ہے کہ ہمیں ساری چیزیں کرنی ہے، پرائیویٹائزیشن PIA کا ہوگا، تو اس کے بعد اور بھی چیزیں ہیں جو ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہیں ان کو میٹیریلائز کیا جائے گا، اسٹیل مل ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ڈسکوز ہیں، تو وہ سب چیزیں ود پیسج آف ٹائم وہ میٹیریلائز ہوں گی، تو یہ دیکھیں یہ بہت بڑی چیز ہونے والی ہے، اور ایکوٹیک میں بھی اگر یہ سعودیہ بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے تو اس کے علاوہ دیکھیں ایک بندہ آئے گا تو اور بھی لوگ فالوورز آئیں گے، تو اس کا کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جو مسئلے مسائل ہیں نا کرنسی کے ریزروز کے، وہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے کوئی پرابلم نہیں، آپ نے بانڈ کی پیمنٹ بھی کر دی، ایک پازیٹیو ہے، پلس آگے جا کے یہ ہے کہ 5 سال کا اگر ریویو بنا کے ہم کام کرتے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے ملک میں بہت ساری چیزیں ایسی ہونے والی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہونے والا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اکثر امین صاحب کہ جو سیکٹرز ہوتے ہیں کہ ایک دو سیکٹر یا ایک دو اسکرپٹ ہی ایسے چلتے ہیں جو مارکیٹ کو سپورٹیو ہوتے ہیں، لیکن آج کے لحاظ سے آپ کون سے سیکٹرز دیکھ رہے ہیں جو آنے والے دنوں میں بھی اور مزید آگے جاتی ہوئی مارکیٹ دے گی؟ دیکھیں انرجی سیکٹر سب سے زیادہ لائم لائٹ میں، کیونکہ آپ نے شیئرز OGDC اور PPL کے جو سٹاکس ہیں وہ آپ نے فروغ کرنے ہیں، پلس ہے کہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں سیمنٹ سیکٹر جو ہے نا ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو نیچے ہے، کیونکہ اگر انٹرسٹ ریٹ اگر کٹ ہو جاتا ہے، اگر 50 بیسس پوائنٹ نہیں اگر 1% ہو جاتا ہے تو بہت مارکیٹ اس کو پازیٹیو لے گی، کیونکہ وہ انڈیکیشن ہوگی کہ سافٹنگ ہوگی، جتنی بھی لیوریج کمپنیز ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ان کے لیے بہتر ہوگا، اس میں کچھ فارماسیوٹیکل کی کمپنیز بھی ہیں جو لیوریج میں ہیں، تو یہ ہے کہ لوگوں کو اپنا ہوم ورک کر کے لوگ جو کام کرے گا اور ایکیومولیٹ کرے گا، دیکھیں ویژن یہ ہے کہ اگر آپ نے کام کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ کیپٹل گینز لوگوں کو کافی ہو سکتے ہیں یہاں سے بھی، کیونکہ ابھی بھی کافی سیکٹر میں کچھ چیزیں ہیں جو بہت نیچے ہیں، نیچے لیول پہ ہیں، کیونکہ سینٹیمنٹ آپ کا خراب تھا، اب تو ساری چیزیں کھل رہی ہیں، چیزیں صحیح ہو رہی تھی کہ پازیٹیو ساری نیوز آ رہی ہیں، جب پازیٹیو نیوز آتی ہے تو اوبیسلی مارکیٹ نے اس کا امپیکٹ لینا ہے، یہ تو نیچرل ہے، یہ کوئی بات نہیں آپ کہہ رہے ہیں مارکیٹ بڑی کیوں بڑھ رہی ہے، کیونکہ چیزیں بہتر ہونے جا رہی ہیں تو اسی وجہ سے بڑھ رہی ہے۔ کیا لگتا ہے 71,000 پہ تھوڑا ریزسٹ کر رہی ہے مارکیٹ کے اوپر، پریشر آ رہا ہے، سیلنگ پریشر ہے، کیا یہ مینٹین کرے گا آج؟ دیکھیے سیلنگ تو مارکیٹ میں پروفٹ ٹیکنگ تو اچھی بات ہے، اور کریکشن تو بہت اچھی بات ہے، کریکشن کو اتنی بڑی نہیں ہے کہ اگر آپ دیکھو کس لیول پہ آپ کھڑے ہوئے ہو، اگر 1% یا 2% کریکشن بھی میٹر کرتی ہے اور وہ آ سکتی ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں، کسی نے پروفٹ ٹیکنگ کرنی ہے اس نے پروفٹ ٹیکنگ کرنی ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے، مارکیٹ ہے، اور جس نے ایکومولیشن کرنی ہے اس نے ایکومولیشن کرنی ہے، دیکھیں اس میں اپرچونٹی بھی اگر مارکیٹ نیچے بھی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے دوسری سائڈ پہ بائنگ اویلیبل ہوتی ہے، لوگ لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے۔ دیکھیے فنڈ کا سائز بھی دیکھ لیں، اگر آپ 10 سال پہلے چلے جائیں پریویس چلے جائیں تو فنڈ کیا چھوٹے سائز تھے، فنڈز کتنے بڑے بڑے سائز تھے، اور پلس لوگوں کو آگے چیزیں بہتر نظر آ رہی ہیں، کیونکہ آپ کے پاس کوئی ایونیو نہیں ہے، آپ کرنسی میں نہیں جا رہے، آپ کو پتا ہے کہ فکس انٹرسٹ میں بھی آپ کو اتنا اچھا آگے جا کے نہیں ملے گا، تو ابھی تو پیسہ اور بہت آئے گا، جو فکس سے پیسہ نکلے گا جو لگا ہوا ہے، جب ریٹ نیچے آئے گا تو وہ پیسہ وہ بھی مارکیٹ میں آنا ہے۔
اس وقت تک والیوم اگر ہم دیکھیں جو پچھلے جب ہم ہائی جا رہے تھے تو والیومز بہت زیادہ میٹر کر رہے تھے, والیومز کے ریکارڈ بھی بنے تھے, لیکن آج بھی والیوم کوئی 30 کروڑ شیئرز کا اب تک کا جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کاروبار ہوا ہے. تو کیا لگتا ہے والیومز اتنے زیادہ کیوں شرنک ہیں؟ دیکھیں والیومس کیونکہ ایک مارکیٹ اوپر لوٹی ہے تو تھوڑے سے لوگ ریزسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, کم پوزیشن لے رہے ہوتے ہیں. فرض کریں اگر کسی نے 50,000 پہ نیچے انڈیکس تھا جو 50,000 والا 5,000 لے رہا ہوگا تو اپنے اس نے لوگوں نے والیوم سے شارٹ کر دیا, کیونکہ اوپر لیول ہوتا ہے تھوڑا سا لوگوں کو فیئر بھی ہوتا ہے کہ مارکیٹ کریکشن تو نہیں لے گی, مارکیٹ کریکشن لے تو ہم بڑی کوانٹٹی میں کام کرو. تو یہ وجہ بھی ہوتی ہے, ایک سینٹیمنٹ ہوتا ہے, ایک سائیکی ہوتی ہے لوگوں کی. لیکن آپ یہ دیکھیں ایک ٹرینڈ مینٹین کر رہا ہے, ایک بلش ٹرینڈ مینٹین کر رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ چیزیں آگے بہتری کی طرف جا رہی ہیں, وہی ریزن ہے اور کوئی ریزن نہیں ہے. تفصیلاً جیسے امین یوسف صاحب نے بتایا کہ اس وقت مارکیٹ میں جتنی اچھی خبریں جو معیشت کو لے کے ہیں, خاص کر جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ بلش ٹرینڈ جو ہے, یعنی کہ مارکیٹ اوپر ہی کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہاں البتہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج صبح جیسے 71,000 سے ایسے ہی مارکیٹ پہ پہنچتا ہے تو اس کے بعد ایک ریزسٹ نظر آتی ہے اور سرمایہ کار جو ہے وہ شیئرز کو بیچنے کو ترجیح دیتے ہیں اور مارکیٹ کے اوپر جو ہے وہ پھر یقیناً وہ مینٹین نہیں کر پاتی اور 70,000 کی سطح پہ آ کے جو ہے وہ دوبارہ مارکیٹ آ جاتی. تو اسی وقت ہم دیکھیں گے صبح بھی 500 سے زائد جو ہے وہ 100 انڈیکس کے اوپر جو ہے پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا تھا, لیکن اس کے بعد سے جو ہے سرمایہ کار محتاط ہوئے اور انہوں نے پروفٹ ٹیکنگ کو جو ہے وہ ترجیح دی اور مارکیٹ جو ہے اس کے بعد دوبارہ 70 اور 71,000 کے درمیان جو ہے اس وقت ٹریڈ ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. سب سے اہم جو اس وقت سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے, جہاں کہ ہم دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنلی طور پہ دیکھا جا رہا تھا کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, سرحدیں جو ہیں وہ اس وقت وہاں پہ جنگی صورتحال بھی ہمیں نظر آئی تھی, لیکن اس کے باوجود مارکیٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ آج مارکیٹ نے ایک تیزی کا تسلسل جو ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے آگے کی طرف چل رہی ہے اور 71,000 کی سطح کو عبور کرنے پہ وہ کامیاب بھی ہوئی ہے. جو سعودی وفد یہاں پر ابھی آیا ہے اس کے اندر بہت سارے ایسے منسٹر جس میں معدنیات کو لے کے بھی جو ہے موجود ہیں, وزیر خارجہ وہ خود یہ اپنا وفد جو ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں. وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہو چکی ہے اور جاری ہے بلکہ, اور یقیناً اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ابھی حال ہی میں ایک دورہ ہوا ہمارے وزیر اعظم کا سعودیہ میں, اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ $5 بلین کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ یہاں پہ آ سکتی ہے. لگتا یہی ہے کہ یہ جو وفد آیا اب زیادہ تر جو ہے ان چیزوں کے اوپر جو بات چیت ہوئی تھی اس کو مٹیریلائز یعنی کہ اس پہ جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہوگا, کیونکہ ساتھ ساتھ منسٹر بھی یہاں پہ موجود ہیں. تو اوور آل مارکیٹ نے اس تمام سینٹیمنٹس کو جو ہے وہ پازیٹیو لیا اور صبح سے ہی مارکیٹ میں ہم نے آئل اینڈ گیس سیکٹر ہے, اس کے ساتھ ریفائنری سیکٹر ہے, اس کے اندر تیزی سے جو ہے لوگوں نے شیئرز خریدے. جب 71,000 کی طرف جب مارکیٹ نے آگے کی طرف سرمایہ کاروں ٹرینڈ کا کیا تو اس کے اعتماد بعد بحال ہو گیا ہے اور مارکیٹ میں تمام سیکٹرز میں سرمایہ کاروں کی دلچسپی دیکھنے میں آ رہی ہے. اسٹاک مارکیٹ میں روز نئے ریکارڈ بننے لگے ہیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت رجحان ہے. اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. تفصیلات جو ہیں ہمیں ایاز رانا دے رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. حکومت نے مہنگائی کے ستائے عوام کو مہنگے پیٹرول کا تحفہ دے دیا. پیٹرول کی قیمت 4 روپے بڑھا کر 293 روپے فی لیٹر مقرر کر دی. ڈیزل بھی 8 روپے مہنگا کر دیا. قیمتیں بڑھنے پر شہری پھٹ پڑے. کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے. بڑھتی مہنگائی نے شہریوں کو پہلے ہی پریشان کر رکھا تھا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کی چیخیں ہی نکال دیں. وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. پیٹرول کی قیمت میں 4 اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا. قیمتوں میں اضافے پر شہری پھٹ پڑے. کہا حکومت پیٹرول مہنگا کر کے ٹیکسز کا بوجھ غریب عوام پر ڈال رہی ہے. مہنگائی نے پہلے ہی کمر توڑ دی. پیٹرول کی قیمت میں اضافے سے مزید بوجھ بڑھے گا. پیٹرول کی نئی قیمت 293 اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی 290 روپے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے. شہریوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے پیٹرول اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کرے. کیمرامین عمران احمد کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. ایک طرف حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا تو دوسری طرف چنگچی رکشوں کے کرائے برقرار ہیں. ڈرائیورز کے مطابق شہری موجودہ کرائے کو بھی زیادہ قرار دے رہے ہیں. اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں میر کیریو. جی بالکل, پہلے ہی بدترین مہنگائی کا سامنا کرنے والی عوام پر حکومت نے ایک اور پیٹرول کا بم گرا دیا ہے. پیٹرول کی قیمتوں میں 4 روپے 80 پیسہ تک کا اضافہ کر دیا گیا, جس کے بعد جو ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں جو ٹرانسپورٹر اور چنگچی ڈرائیورز نے بھی کچھ حد تک کرائے میں اضافہ کر دیا گیا ہے. اس وقت جہاں میں موجود ہوں یہ کراچی کا قیوم آباد کا علاقہ ہے. یہاں سے ہم ایک چنگچی ڈرائیور سے پوچھیں گے کہ انہوں نے کتنا کرایہ میں اضافہ کیا ہے یا نہیں کیا, یا آگے اگر پیٹرول میں اضافہ ہوا تو وہ کرایہ میں اضافہ کریں گے یا نہیں کریں گے. سر بتائیے گا کہ پیٹرول میں 4 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے, تو اس کے بعد آپ نے کرایہ میں کوئی اضافہ کیا ہے؟ جی نہیں سر, ہم نے نہیں کیا ہے. جی ہاں, کیوں تو یہاں سے گاڑیاں زیادہ پیٹرول پیتے ہیں, مہنگائی زیادہ ہے اور وہی ہمارا گزارا نہیں ہوتا ہے.
पहले गुजारा होता था, अभी नहीं होता है। पेट्रोल महंगा हो गया हम लोगों की। अभी गाड़ी की भाड़ा भरते हैं, ये खर्चे हैं, ये ज़्यादा होते हैं। हमको मकसद ये है तो इजाफा नहीं हो सकता है, रोज़ी नहीं हो सकता, हम मजबूर हैं, क्या करें हम। तो पहले नीपा का कितना किराया यहाँ से? पहले निपा की यहाँ से किराया था 50 रुपये। जी जी। तो अभी कितना किराया है? अभी 80 रुपये किराया है। जी बिल्कुल, आपने चिंगची ड्राइवर की बातें सुनी। उनका कहना था कि पेट्रोल में जो इजाफा हुआ है 4 रुपये तक का, उसके बाद उन्होंने किराए में कोई इजाफा नहीं किया था। उनका यह भी कहना है कि अगर पेट्रोल में मज़ीद इजाफा किया गया तो उसके बाद मुमकिन तौर पर यह भी किराए में 10 रुपये तक का इजाफा कर सकते हैं। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्टर के किराए बरकरार हैं। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि अब तक किरायों में इजाफा नहीं हुआ, मगर यूनियन के फैसले के बाद इजाफा हो सकता है। मुमकिन तौर पर 10 रुपये तक का इजाफा हो सकता है। मज़ीद जान लेते हैं ताहा मलिक से। जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रात जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किराए बढ़ाए गए हैं या नहीं बढ़ाए गए, इस हवाले से हम जो है इस वक्त कराची की जो अड्डा है वहाँ पर मौजूद हैं। इधर मज़ीद कंडक्टर्स मौजूद हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सर मुझे बताइएगा कि जो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इनके किरायों में इजाफा किया गया है, नहीं किया गया? नहीं, अभी तक तो फ़िलहाल नहीं किए, और जैसे यूनियन सदर का क्या बोलते हैं वो आएगा, शेड्यूल आएगा तो उसके मुताबिक करेंगे, किराया बढ़ाएंगे। बाकी किराया तो फ़िलहाल बढ़ा नहीं है। हो सकता है 10 रुपये बढ़ा जाए। 10 रुपये तक हमारी जो है ना वो होती है, रेंज होती है कि क्यों आवाम भी परेशान ना हो ना। आवाम ये किराया अफोर्ड नहीं कर सकते, जो ये अभी बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि हम लोग को भी मार पिटाई शुरू कर दे आवाम। आपको आवाम की पता है कि किस तरह आवाम है कराची की। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि किराए जब बढ़ाए जाते हैं तो आवाम का क्या रिएक्शन होता है, क्या कहती है आवाम? आवाम तो मारने लग जाती है बेहद, और जो है ना अफसोस करने लग जाती है कि हाय हाय ये क्या होगा, फलाना होगा। तो ये रिएक्शन होता है आवाम का। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो फौरी तौर पर हम देखते हैं कि 1 से 2 दिनों में किराए बढ़ा देते हैं। कम होती है तो क्या किराए कम किए जाते हैं, क्या सिलसिला होता है? जी बिल्कुल, जब पेट्रोल कम होता है तो किराया हम बाज़ाती तौर खुद कम कर लेते हैं। गाड़ियों वाले यूनियन जो सदर बोल देते हैं कि कम कर दो तो कम कर देते, वापसी से उसी रेट पे आ जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कंडक्टर्स का ये कहना था कि अभी तक जो है वो किराए नहीं बढ़ाए गए हैं, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा किराए बढ़ाए ना का तो जो है वो किराए बढ़ा भी दिए जाएंगे। और साथ ही ये भी कहना था कि अगर जब किराए बढ़ा जाते हैं तो आवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आवाम में पाया जाता है। और साथ ही जब पेट्रोल कम होता है तो उनका ये भी कहना था कि पेट्रोल की कीमत कम होने के साथ साथ किरायों में भी कमी की जाती है। हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम को महंगे पेट्रोल का तोहफा दे दिया। शहरी इजाफे पर फट पड़े, बोले महंगाई ने कमर तोड़ दी है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से मजीद बोझ बढ़ेगा। काविश मेमन से तफसीलात जानेंगे। बिल्कुल, देखें महंगाई की सताई अवाम पर वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल बम फोड़ दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल 4 रुपये जबकि डीजल 8 रुपये महंगा हुआ है। पेट्रोल पंप में मौजूद है, कुछ शहरियों से बात करते हैं। बताइएगा, पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा कर दिया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? इतना महंगी हो गई ये पेट्रोल, जो आदमी कैसे पूरा करेगा? मजदूरी वाला आज कमाता है कल खाता है, वो कैसे भरेगा पेट्रोल? इतना पेट्रोल भर गया जाता है, कोई भी इधर हड़ताल नहीं करता है। जितने भी महंगाई होवे आदमी चलता रहता है। देखिए, इस सवाल से लोगों के बहुत ज़्यादा कंसर्न्स भी है। पहले ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा, और एक बार फिर जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 दिन के लिए इजाफा किया गया, और इस हवाले से शहरियों में बहुत ज़्यादा कंसर्न्स पाए जाते हैं। जी, महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। पेट्रोल 4 रुपये 53 पैसे फी लीटर महंगा होने से योमिया उजरत कमाने वाले बाइक राइडर्स भी परेशान हो गए। तफसीलात जान लेते हैं एहसन अब्बासी से। जी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद जो है वो बाइकर्स को जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना है। साथ साथ डीजल और पेट्रोल में जो कीमतें बढ़ी हैं वो मौजूदा सूरत हाल में रद्द की जा रही हैं आवाम की जानिब से, और कह रही हैं कि मजीद महंगाई में इजाफे का सबब बनेंगी। बाइकर्स हमारे साथ मौजूद हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पे कमा के अपने घर की कफालत करते हैं। उनसे बात कर लेते हैं कि ये महंगाई में कितना असरअंदाज होंगी ये कीमतें। भाई मुझे बताइएगा, रोज़ाना जो है वो बाइक चला के आप पैसा कमा रहे हैं, 4 रुपये 53 पैसे पेट्रोल पे बढ़ गए, क्या कहेंगे अब कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? सर, जो हम कस्टमर से बात करते हैं वो पैसे नहीं दे पाते, और एक पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है, क्या करें हम? गरीब आवाम किधर जाए? ठीक है, राइड में जो है वो कितना मुनाफा होता है एक पे? सर, एक राइड पे 150 रुपये बचत होती है। तो ये अब जो कीमतें बढ़ी हैं असरअंदाज करेगी आपकी मुनाफे को?
अभी सर सुबह से खड़े हुए हैं, अभी एक ही सवारी पकड़ी थी, उसको छोड़ा है 200 रुपये में, वो भी मुश्किल से लेके गया 200 में। ठीक है नाज़रीन, जो बाइक पे सफ़र करते थे दीगर जो सार्फिन थे अपने दफातर और दीगर तालीमी मराकज़ और दीगर जगहों पे जाने के लिए, वो अब जो है वो बसों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई के बाइस जो है ये बाइकर जो हमारे साथ मौजूद है उनका भी यही कहना है कि कीमतें बढ़ने के बाइस जो है वो सुबह से खड़े और एक ही राइड अब तक लग सकी है। महंगाई में काफ़ी हद तक जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है। जो रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र करने वाले लोग थे अब वो भी इन कीमतों से मुतासर होंगे। जी, नए माली साल के बजट की तैयारी शुरू। सदर यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप जुबैर तोफैल ने हुकूमत से इंडस्ट्री के लिए एनर्जी की लागत कम करने का मुतालबा कर दिया। साथ ही बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर मजीद टैक्स का बोझ आयद करने को मुस्तरद कर दिया। तफसीलात जान लेते हैं अशरफ खान से। देखा जाए हुकूमत इस वक्त वफाकी बजट की तैयारी कर रही है। यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से कंसर्न शो किए जा रहे हैं कि हुकूमत तमाम जो एक्सपोर्टर्स हैं इम्पोर्टर उनके साथ बैठ कर तजावीज़ ली जाए और जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए बजट में। जानते हैं यहाँ पे यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के जो सदर हैं जुबैर तुफैल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बजट की तैयारी हो रही है, क्या कोई प्रपोजल लिए गए हैं? जी हाँ, उन्होंने FPR ने जो कहा है, FPCCI से भी और दूसरे बिजनेसमैन से भी बजट के प्रपोजल मांगे, जो कुछ सबमिट कर दिए गए, बाकी जो है इस महीने के आखिर तक सबमिट किए जाएंगे। और उसके अंदर हमारे बजट प्रपोजल में यही है कि जो करंट एनर्जी प्राइस है वो हमारे बिजनेस को हर्ट कर रही है। जब तक एनर्जी प्राइस को एड्रेस नहीं किया जाएगा तो ना एक्सपोर्ट हो सकेगी और ना कोई और पॉजिटिव काम हो सकता है। जुबैर साहब, अगर देखा जाए इस वक्त जैसे बिजली की बात की, यहाँ पे गवर्नमेंट में जो तजावीज़ दी गई कि पेट्रोलियम पे जो है 1 जुलाई से कह रहे हैं कार्बन लेवी लग जाएगी। अगर कार्बन लेवी 30 से 40 रुपए पर लीटर लगती तो पेट्रोल तो बुलंद तरीन सतह पे पहुंच जाएगा। देखिए, पेट्रोल हमारा ऑलरेडी जो है महंगा है। अगर आप इसमें कार्बन लेवी की बात कर रहे हैं तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हुकूमत को चाहिए कि ऑलरेडी पहले पेट्रोलियम लेवी जो है वो अच्छा खासा अमाउंट है, उसी के जरिए काम चलाए। और ये कार्बन लेवी की बात है, ये हमारी इकोनॉमी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। जी, जैसे कि आपने सुना यहाँ पे अहम तजावीज़ दी हैं और कहा है कि जो हुकूमत जो बजट बनाने जा रही है तो ये फेडरेशन हाउस समेत तमाम बिजनेस कम्युनिटी से तजावीज़ लें, उसमें मिल बैठ के ये फैसला करें कि इंडस्ट्री कैसे चलाना है। सबसे अभी तजवीज़ ये है कि बिजली की कीमत में कमी की जाए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का गैर कानूनी तामीरात के गिर घेरा तंग करने का फैसला। ज़ेर तामीर इमारतों पर बोर्ड्स लगाकर इमारत की तफसीलात आवेजा करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तफसीलात जान लेते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, आगाह कीजिएगा, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का गैर कानूनी तामीरात के गिर घेरा तंग करने का फैसला किया गया है। जी हाँ, देखें, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अब ज़ेर तामीर जितने रिहायशी और कमर्शियल इमारतें हैं, इन तमाम इमारतों की तफसीलात QR कोड समेत तमाम एक बोर्ड के ज़रिए इमारत के नीचे लगाई जाएंगी। ये डायरेक्शंस दी हैं डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब्दुल रशीद सोलंकी ने। और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़ेर तामीर इमारतों पर प्लाट नंबर, मंजूर शुदा फ्लोर, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का लाइसेंस, नक्शा, ये तमाम चीज़ें जो हैं बिल्डिंग के नीचे आवेजा की जाएंगी, ताकि इंस्पेक्शन पे अगर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीम पहुंचती है तो तमाम तर तफसीलात मुहैया की जाए। बुनियादी तौर पे ये फैसला इसलिए किया जा रहा है कि कराची में इस वक्त गैर कानूनी इमारत की तामीर की भरमार है और वो तमाम इमारतें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नाम से या उनके NOC के मुताबिक बन रही हैं। तो अब ये इससे साबित होगा कि इमारतों की तफसीलात जब आवेजा की जाएंगी तो पता लगेगा कि किस इमारत को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का NOC हासिल है या नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली। पुलिस के 16 ग्रेड के असिस्टेंट को सुप्रीडेंट के ओहदों पर तरक्कियां देने का फैसला। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद इकबाल मेमन ने सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 3 का इजलास कल तलब कर लिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आज़ाद नोड़ियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा कि इजलास कितने बजे होगा? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने सिंध पुलिस के 16 ग्रेड के जो असिस्टेंट्स हैं उनको अगले 17 ग्रेड में सुप्रीडेंट के ओहदों पर तरक्कियां देने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला है मोहम्मद इकबाल मेमन, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 3 का इजलास जो है कल 3 बजे तलब कर लिया है। इस इजलास में जो है जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान वो शरीक होंगे। इजलास में सिंध पुलिस के
16 ग्रेड के असिस्टेंट्स को अगले 17 ग्रेड में तरक्की देने के हवाले से गौर किया जाएगा, जिसके बाद जिसमें काबीना जो सिलेक्शन कमेटी है इनकी मंजूर देगी। मंजूर के बाद बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इस हवाले से आज ही सिंध को महकमा दाखिला में खत अरसाल करके जो स्नातक के हकदार उम्मीदवार हैं उनकी फहरिस्त भी वक्त से कबल तलब कर ली है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद होगी। पाकिस्तान रेलवे का एडवांस बुकिंग सिस्टम सुबह 9 बजे से गैर फाल। कैंट स्टेशन समेत मुख्तलिफ स्टेशन पर एडवांस टिकट बुक और कैंसिल कराने आए मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। सिस्टम खराब होने से गुज़िश्ता 3 घंटे से किसी किस्म की बुकिंग नहीं हो रही। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। अक्सा शाहिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हमारी नुमाइंदा। अक्सा बताइएगा ये सिस्टम कब से ख़राब है और इंतज़ामिया का इस हवाले से क्या कहना है, कब तक सिस्टम ठीक कर लिया जाएगा? बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवे का एडवांस बुकिंग सिस्टम जो है वो सुबह 9 बजे से जो है वो गैर फाल है। कराची कैंट स्टेशन समेत मुख्तलिफ कैंट स्टेशन और मुल्क भर के मुख्तलिफ जो स्टेशन हैं उनमें टिकट बुक कराने आने वाले पैसेंजर और मुसाफिर और कैंसिल करवाने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गुज़िश्ता कई हफ्तों से जो ये शिकायत जो है वो बार बार देखने में आ रही है कि घंटों तक जो है वो इनका सिस्टम काम नहीं करता है और जो टिकटिंग ऑफिसर है वो ऐसे ही बैठे रहते हैं और मुसाफिरों की जो वो लंबी कतारें जो है वो रूम्स में लग जाती हैं। सिस्टम खराब होने की वजह से जो है वो 2.5 घंटे तक जो है वो सुबह से आज कोई बुकिंग नहीं हुई है, जबकि इससे रेलवे इंतजामिया का जो है वो कोई भी मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। जी बहुत शुक्रिया अक्सा शाहिद। तहरीक इंसाफ का बाग जना में जलसे की इजाज़त ना मिलने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर शर्की को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़ बताइएगा समाअत के हवाले से। देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से डिप्टी कमिश्नर शर्की से 28 अप्रैल को बाग जिना में जलसा करने की इजाज़त मांगी गई थी। 3 दरख्वास्त जो है वो दी गई थी, लेकिन ताहाल डिप्टी कमिश्नर की जानिब से कोई जवाब नहीं जमा कराएगा। उसके बाद जो है तहरीक इंसाफ की जानिब से हाई कोर्ट से रुजू किया गया था। आज जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की जस्टिस हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच से समाअत की है। अदालत ने सूबाई हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर को नोटिस जारी कर दी है और आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने एडवोकेट जनरल से जो है उनसे को हिदायत की है कि आइंदा समाअत पर आप ये बताएं कि इजाज़त देनी है या नहीं देनी है, लिहाजा तैयारी के साथ आएँ। और अदालत ने आइंदा समाअत पर मुतल्लिका फरीकैन से भी जवाब तलब किया है। दरख्वास्त गुजार के वकील बैरिस्टर अली ताहिर का ये मौक़िफ़ है कि वो 28 तारीख को पीटीआई की जानिब से वहाँ पर जलसा होना है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर की जानिब से उनकी दरख्वास्त पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। जी बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली। अरकान कौमी असम्बली ने सरकारी अखराजात पर 2018 से 2022 तक कितने गैर मुल्की दौरे किए। शहरी ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। तफसीलात जान लेते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, अरकान कौमी असम्बली ने 2018 से 2022 में कितने ऐसे सरकारी दौरे किए बाहर मुल्क के, उस मुतल्लिक शहरी ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री से रजू कर लिया है। शहरी आमिर ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर कर दी है। उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि 2022 में उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली को एक दरख्वास्त दी थी और दरख्वास्त में उनका ये मौक़िफ़ था कि उनको तमाम तर तफसीलात दी जाएँ। 2018 से 2022 तक अरकान कौमी असम्बली ने सरकारी अखराजात पर कितने गैर मुल्की दौरे किए, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को क्या मरातें दी जा रही हैं और मुलाजमीन की तफसीलात भी फराहम की जाएँ। लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने उनकी दरख्वास्त पर उनको कोई जवाब नहीं दिया। बाद में उन्होंने इंफॉर्मेशन कमीशन से रुजू किया था। इंफॉर्मेशन कमीशन ने कौमी असम्बली के स्पीकर को जो है तमाम तर तफसीलात देने का हुक्म दिया था। शहरी का मौक़िफ़ है कि इंफॉर्मेशन कमीशन के फ़ैसले को 2 साल गुजर चुके, ताहाल उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। फ़ैसले पर अमल दरामद के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था और सिंध हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और उस फ़ैसले की अपील पर वो सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है। इस दरख्वास्त में स्पीकर कौमी असम्बली समेत और पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। साइन बोर्ड गिरने से शहरी की हलाकत का केस, जुडिशल मजिस्ट्रेट बस्ती ने MC हेड को डायरेक्टर असर अली के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से हिदायत जारी कर दी। तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ।
जी बिल्कुल, देखें साइन बोर्ड गिरने से शहरी की हलाकत का केस जिसकी समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट वसी की अदालत में हुई है। KMC डायरेक्टर अजहर अली अदालत से आज भी गैर हाजिर रहे, जिस पर अदालत ने KMC हेड को जो है वो अजहर अली के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी है। अदालत ने कहा है कि मुलजिम का शनाख्ती कार्ड नंबर और वल्दियत 22 अप्रैल से पहले फराहम की जाए। अदम फराहमी पर जो है KMC हेड के खिलाफ कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई की जाएगी। साइन बोर्ड गिरने का वाक़या जो है वो अगस्त 2023 में पेश आया था, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 ज़ख्मी हो गए थे। मुकदमे में जो है म्यूनसिपल कमिश्नर अख्तर शेख, KMC डायरेक्टर्स अजहर अली और तस्लीम अहमद को नामजद किया गया था और दीगर को नामजद किया गया था। जो दीगर मुलजिमान हैं उन्होंने जो है सेशन अदालत से ज़मानत ले लिए, ताहम अजहर अली ताहाल मफरूर हैं। मुलजिमान के ख़िलाफ़ जो है वो तफ्तीशी अफसर अदालत में चालान भी जमा करवा चुके हैं, जिसमें उन्होंने इन मुलजिमान को कसूरवार करार दिया था। जो मुलजिम अजहर अली KMC का डायरेक्टर है उसके खिलाफ अदालत जो है वो 1 से ज़ायद मरतबा जो है वो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर चुकी है। इस वाक़े का मुकदमा जो है वो थाना नाज़िमाबाद में दर्ज किया गया था। जी और आपको बताएं, हिजरत कॉलोनी स्कूल में जनरेटर के धुएं से 22 बच्चे बेहोश, रेस्क्यू इदारे मौका पर पहुंच गए। जी हाँ, हिजरत कॉलोनी स्कूल में जनरेटर के धुएं से 22 बच्चे बेहोश हो गए, जबकि रेस्क्यू इदारे मौके पर पहुंच चुके हैं। इसी पर मजीद अपडेट्स ले लेंगे, हमारी नुमाइंदा आयमा खान हमारे साथ मौजूद है। आयमा, बताइएगा किस तरह से पेश आया वाक़या और स्कूल इंतज़ामिया का इस हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए हिजरत कॉलोनी सेक्टर 2 में अलहम्द स्कूल में जो है वो जनरेटर के धुएं से मुतादिद बच्चों की हालत जो है वो गैर हो गई है। रेस्क्यू का अमला और पुलिस जो है वो जाए वक़ुआ पर मौजूद है। हिजरत कॉलोनी सिविल लाइन में वाक़या अलहम्द पब्लिक स्कूल में पेश आया है। बच्चे जो है वो गैस की वजह से बेहोश भी हो गए हैं, जो कि अब बेहतर हैं। यानी शाहिदीन का ये बताना है। हिजरत कॉलोनी सेक्टर 2 अलहम्द स्कूल में जो है वो जनरेटर का धुआं भर गया था, जिसकी वजह से मुतादिद बच्चों की हालत जो है वो गैर हो गई थी। रेस्क्यू का अमला जो है वो मौके पर मौजूद है, जबकि इसके अलावा जो है वो जाए वक़ुआ पर इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं। इस हवाले से जो है वो अब तक स्कूल इंतजामिया का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। अलबत्ता डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूशन ने जो है वो वाक़ये का नोटिस भी ले लिया है और जो डायरेक्टरेट की टीम भी है वो भी जाए वक़ुआ का मुआयने के लिए जो है वो रवाना भी हो गई है। जी साइमा, बताइएगा कि रेस्क्यू की कितनी टीमें इस वक्त जो गाड़ी है मौके पर मौजूद हैं और क्या कहा जा रहा है, कब तक रेस्क्यू कर लिया जाएगा तमाम बच्चों को? जी बिल्कुल, देखिए रेस्क्यू की टीमें जो है वो मौजूद है। एडी एम्बुलेंस और रज़ाकार जो है वो जाए वक़ुआ पर मौजूद है। इसके अलावा इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी हैं और ये बताया जा रहा है कि 20 बच्चे जो हैं वो तकरीबन इस हादसे में जो है वो बेहोश हुए हैं। उनकी हालत जो है वो गैर है, लेकिन जो है वो एनी शाहिदीन का ये भी बताना है कि अभी के उनके बच्चों की जो बेहोश होने वाले बच्चे जो हैं उनकी हालत जो है वो अब बेहतर हो रही है और जो है वो रेस्क्यू का काम जो है वो बहुत तेज़ी से भी जारी है। जी साइमा, ये भी बताइएगा क्या स्कूल को खाली करवा दिया गया और तमाम बच्चे जो है उन्हें स्कूल से बाहर निकाल लिया गया है? ये भी बताइएगा कि जिन बच्चों की आप कह रहे हैं हालत गैर है, इस हवाले से क्या कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत अब कैसी है? जी बिल्कुल, देखिए स्कूल की जो इमारत है उसको जो है वो खाली करवाने का अमल जो है वो बहुत तेज़ी से जारी है। स्कूल की इमारत को खाली करवाया जा रहा है रेस्क्यू पे और बहुत तेज़ी से जो है वो इमदादी सरगर्मियाँ की जा रही हैं। अचानक से जो है वो जनरेटर का धुआं भर गया था, जिसकी वजह से जो है वो जनरेटर का धुआं भरने से बच्चे जो है वो बेहोश हो गए थे। लेकिन एनी शाहिदीन का ये बताना है कि अब जो है वो जो स्कूल में बच्चे जो बेहोश होने वाले 20 बच्चे थे, उनमें से कुछ बच्चों की हालत जो है वो बेहतर हो चुकी है। जी साइमा, ये भी बताइएगा कि स्कूल इंतजामिया के में से किसी से आपकी बात हो सकी है, उनका क्या कहना है? धुआं निकल रहा था जनरेटर से, 22 बच्चे बेहोश हो गए, तो ये तो काफ़ी वक्त लगा होगा ना इसमें, तो क्या उन्होंने फ़ौरन से कोई इस पर एक्शन नहीं लिया? जी बिल्कुल, देखिए स्कूल इंतजामिया की जानिब से अब तक इस हवाले से कोई मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं आया है। अलबत्ता जो डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उन्होंने जो है वो इस बात का नोटिस भी ले लिया है कि प्राइवेट स्कूल्स में इस तरह से जो जनरेटर वगैरह का इस्तेमाल है उसकी वजह से काफ़ी हमने देखा, पहले माजी में भी इस तरह के वाक़यात पेश आते रहे हैं कि जो है वो जनरेटर का धुआं भर जाता है या जो है वो जनरेटर फटने की वजह से भी जो है वो काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि स्कूल की इमारत को भी नुकसान पहुँचता है, बच्चों की जानी नुकसान भी हुआ है। लेकिन हम ये देखते हैं कि चूँकि शहर कायद में लोड शेडिंग का दौरानिया भी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी में भी बच्चे नहीं पढ़ सकते, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जनरेटर का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल किया जा रहा है। तो इस हवाले से इस वाक़े का नोटिस प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूशन की जानिब से ले लिया गया है। अलबत्ता ताहाल जो है वो स्कूल इंतजामिया का अब तक कोई मौक़िफ़ इस मामले पर सामने नहीं आया है। जी डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का वाक़े पर नोटिस भी लिया गया है और इसके इदारे इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे
शाहजेब हुसैन भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शाहजेब, इस वाक़े के हवाले से बताइएगा। शाहजेब से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे नाज़रीन से शेयर करें कि हिजरा कॉलोनी स्कूल में जनरेटर का धुआं भर जाने से 22 बच्चे इस वक्त बेहोश हैं और रेस्क्यू इदारे इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। क्या तफसीलात हैं? शाहजेब, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए हिजरत कॉलोनी सेक्टर 2 अलहम्द स्कूल है, जहां जनरेटर के धुएं से मुतादिद बच्चों की हालत गैर हो गई थी। इस वक्त जो बताया जा रहा है मुतादिद बच्चों में जिनकी तादाद है वो 22 है, जिनको इतला मिलते ही रेस्क्यू अमला और पुलिस जो है मौके पर पहुंच गई है। हिजरत कॉलोनी सिविल लाइन में वाक़ अलहम्द पब्लिक स्कूल में ये वाक़या पेश आया है। बच्चे गैस की वजह से बेहोश हुए हैं, जो अब बेहतर बताए जाते हैं। 3 की हालत मजीद गैर है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत और धुआं बढ़ जाने की वजह से इनकी हालत गैर हुई है। वाक़े के बाद पुलिस भी चाहे मौके पर पहुंच चुकी है। डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने वाक़े का नोटिस भी लिया है और डायरेक्टरेट की टीम स्कूल का मायने करने के लिए जो है रवाना हो चुकी है। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि जो 3 बच्चे ज्यादा मुतासर थे उनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जी अच्छा शाहजेब, बताइएगा कि बच्चे जो आप बता रहे कि 22 बच्चे इस वक्त बेहोश हैं, किस क्लास के ये बच्चे हैं? जी बिल्कुल, देखिए बच्चे बेहोश 3 बच्चे बेहोश हुए थे और 22 बच्चों की जो है हालत गैर हुई थी। इसमें बताया जा रहा है कि जो गैस कंप्रेसर होता है वो बढ़ जाने की वजह से स्कूल में जो है धुआं फैला और धुआं फैलने की वजह से और ऊपर से गर्मी होने की वजह से जो बच्चे स्कूल में तालीम हासिल कर रहे थे, जिनकी बात की जाए तो फर्स्ट क्लास से लेकर और 5 क्लास तक के बच्चे जो है उसमें जिनकी हालत गैर हुई है वो बताए जाते हैं। तो वो जो है 22 बच्चों की हालत गैर हुई थी और 3 बच्चे बेहोश हुए थे। जो 3 बच्चे बेहोश हुए थे वो अब बेहतर हैं और उनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जबकि जो मुतादिद और बच्चे थे जिनकी हालत गैर हुई थी उनको खुली हवा में खुली फिजा में ले जाकर उनको पानी पिलाया गया और उनको जो है सर पानी डाला गया है, जिसके बाद उनकी हालत अब मजीद बेहतर हो गई है। इस वाक़े के हवाले से बताया जा रहा है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वाले जो है उनकी जानिब से इस बात का नोटिस लिया गया है। उनकी जो डायरेक्टर की जो टीम है वो स्कूल का मुआयना करने के लिए रवाना हो चुकी है। अच्छा, डायरेक्टरेट की टीम स्कूल के मुआयने के लिए रवाना है और इस पर मुआयना किया जाएगा, देखा जाएगा ये किस तरह से वाक़या पेश आए। लेकिन शाहजेब, हम ये देखते हैं कि इस तरह के वाक़यात पहले भी होते रहे हैं, तो इसके हवाले से मुकम्मल इंतजामात पहले से क्यों नहीं किए जाते? कहना कब ऐसा होगा कि किस तरीके के इंतजाम उस स्कूल में किए गए थे, उस इमारत में किए गए थे जिसके से ये हादसा पेश आया है। क्योंकि देखिए जब इस तरीके का हादसा रोजना होता है तो उस वक्त देखा जाता है, तायीन किया जाता है कि किस ये वाक़या कैसे पेश आया। अभी जो इब्तिदाई मालूमात हमने हासिल की तो उस मुताबिक जो जनरेटर का कंप्रेसर था वो फटा और उसकी वजह से जो है धुआं फैला और धुआं फैलने की वजह से बच्चों की हालत जो है गैर हुई है। तो ये वाक़या सामने आया है। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि जो बेहोश हुए थे बच्चे उनकी हालत खतरे से बाहर है, उनको अस्पताल रवाना कर दिए गए, जबकि जो मुताबिक बच्चे जो वहाँ पर जिनकी हालत गैर हुई थी उनको जो है तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही है। तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। शाहजेब, बताइएगा इस हवाले से भी कि जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो क्या मौके पर मौजूद हैं? इस वक्त बच्चों की हालत गैर थी, अब बेहतर है? जी बिल्कुल, जब ये वाक़या पेश आया था अब से आधे घंटे कबल तो बच्चों की हालत जो है बची और उनको जो है फौरी तौर पर तिब्बी सहूलियात फराहम की गई और तिब्बी सहूलियात फराहम करने के बाद उनको जो है पानी डाला गया और पानी डालने के बाद उनको जो 3 बच्चे जो बेहोश हुए थे उनको फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ये वाक़े की इत्तला मिलने के बाद जो बच्चों के वालिदैन थे वो भी जो है स्कूल के बाहर पहुंच चुके हैं, अपने बच्चों की तलाश कर रहे हैं और अपने बच्चों की हिफाजत के लिए इक़दाम कर रहे हैं। जी अच्छा, आयमा भी हमारे साथ मौजूद है। आयमा, बताइएगा जैसे कि बताया जा रहा है कि 3 बच्चे जो हैं इस वक्त उनकी हालत गैर थी, उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, तो क्या अस्पताल में से किसी से आपकी बात हो सकी है, पता चल सका है कि उन बच्चों की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, देखिए जिन बच्चों की हालत गैर हुई थी तो उनको अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है, लेकिन अभी जो है वो अस्पताल इंतजामिया से भी इस हवाले से हमारी कोई बात अब तक नहीं हुई है। तो ये कहना इस पर कबल इस वक्त है कि उन बच्चों की हालत क्या है। अलबत्ता जो 20 बच्चे जिनकी हालत गैर हुई थी उनकी एनिशाइडीन का ये बताना है कि उनकी हालत जो है वो अब बेहतर है, चूंकि उनको स्कूल से फौरी बाहर ला के जो है वो खुली हवा में बिठाया गया था, जिसके बाद जो है वो पानी वगैरह उनके सरों पर डाला गया था और अब जो है उन बच्चों की हालत
बेहतर है, लेकिन जो बेहोश होने वाले 3 बच्चे हैं उनकी हालत के बारे में जो है वो अभी अस्पताल इंतजामिया की जानिब से भी जो है वो कोई मौके सामने नहीं आया है। जी अच्छा, अब से कुछ देर पहले जब आपसे बात हो रही थी तो आप बता रहे थे कि स्कूल को अभी खाली करवाया जा रहा है, बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है, तो क्या अब तमाम स्कूल को मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए वाकया जो है वो आपसे कुछ आधे घंटे कबल जो है वो ये पेश आया था, जिसके बाद रेस्क्यू की टीमें फौरी तौर पर जो है वो जाए वकुआ पर पहुंच चुकी थी और स्कूल की इमारत को जो है वो फौरी तौर पर खाली करवाने के लिए तेजी से काम भी जो है वो किया जा रहा था। और यही देखने में आ रहा है कि हो सकता है कि उन्होंने जो है वो तमाम स्कूल की इमारत को जो है वो खाली करवा लिया हो, चूंकि ये निजी स्कूल है, निजी स्कूलों में बच्चों की भी बड़ी तादाद जो है वो तालीम हासिल करती है, तो यही वजह है कि स्कूल की बिल्डिंग को खाली करवाने में कुछ वक्त लग भी सकता है। और ये भी कहा जा सकता है कि रेस्क्यू की टीमें जो है वो फौरी तौर पर पहुंचने की वजह से अहले इलाका भी वहां पर मौजूद है, तो स्कूल की इमारत को जो है वो खाली करवा लिया गया है। अच्छा आयमा, ये बताइएगा कि कितनी मंजिला इमारत है ये और किस क्लास से लेकर किस क्लास तक के बच्चे मौजूद हैं इसमें? जी बिल्कुल, देखिए ये अलहम्द पब्लिक स्कूल है और ये जो है वो कितनी मंजिला, ये जो है वो कुछ मंजिला इमारत है और यहाँ पे जो है वो ये एक पसमानदा इलाके में कायम स्कूल है, इज्जत कॉलोनी में ये स्कूल कायम है, तो निजी स्कूल है। अलबत्ता ये स्कूल जो है वो पसमानदा इलाके में कायम है, तो ये प्राइमरी स्कूल कहलाया, प्राइमरी स्कूल है। जी हिजर कॉलोनी स्कूल में जनरेटर का धुआं भर जाने से 22 बच्चे बेहोश हो गए, जिनमें से 3 की हालत जो है गैर बताई जा रही है। रेस्क्यू इदारे इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदगान आयमा खान और शाहजेब हमारे साथ मौजूद हैं, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।